ले लेता हूँ, मुझे भी अगर तुझे देख रही चलो। समीर साहब शुरू करें, टाइम हो गया है। जी सर, कर रहे थे, 1 मिनट। Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. We welcome you all to the corporate briefing of Nishat Power Limited on the annual audit accounts for the financial year ended June 30th, 2024. Next slide. Let me introduce the participants here from our side. Mirza Ghaffar Saab here, Chief Executive Officer of Nishat Power, and board side, Farooq Zal Saab and Mahmood Saab is also here. Shah Saab is also joining through Zoom, our company secretary, Puram Saab, Muslim Saab, and Bilal Saab, Imam Saab. And Rao Khalid also assisting in the IT area. Okay, let's go to the company brief first of all. Nishat Power is a 200 megawatt RO5 combined cycle power plant, and the PPA term is 25 years. It's located at Baiperu near Pattoki Tehsil. It's a subsidiary of Nishat Mills, which has 51% equity ownership. It was established under Power Policy 2002, incorporated in 2007, and shares were listed on stock exchange in 2009. Commercial operation date was achieved in year 2010. And subsequent to that, in 2021, an amendment to the power purchase agreement was done. This is the brief overview of last 4 to 5 years capacity utilization. So this year in 2024, the capacity utilization was 26%, a little bit lower than the last year's capacity utilization, which was 31%. Next one. Okay, this is the operation highlights. It is showing the red bar showing the FY 2024 capacity utilization, and blue bar showing the FY 2023 capacity utilization. So the winter months plants are running, and in the summer months plants are normally running about 40 to 50%, while in other months the capacity factor is a bit low. Next one. Okay, this is the overview of sales, gross profit, and net profit.
So in 2024, net profit has increased. It is 5.39 billion as compared to 4 billion of last year. Sales are almost similar to last year, and earnings per share has also improved. Next. Average fungicide prices in year 2024 are 168,000 rupees per ton, which is a bit higher than the last year. Last year it was 154,000 rupees per ton. So 9% increase has been done in prices of fungicide. And this is the receivable situation of the different quarters. So the last quarter, June 2024, receivables are 14.4 billion. While in September 2023, it was on the higher side, 17.5 billion. So over the period of 9 months, the receivables have improved. And this is the liquidity position and the dividend payouts by Nishad Power in the last few years. So in year 2024, the receivables to power purchase are 14.4 billion and the payout ratio is 62%. In same case with 2023, where payout ratio was 61%. Short-term borrowings are controlled and are relatively on a low level. Okay, circular debt and capacity utilization are the key issues here at this moment in the power sector. And बॉस everyone आपका मीरपुर खास में मैंने ताला लगा everyone is aware of the circular debt situation, that it is keep on piling each year, despite the government efforts of subsidizing and allocating budget for that. There is no respite in that. And capacity utilization is also kind of stagnant over the last year. It's not increased because of there are other power production options available in the government. However, our plant has a technological advantage of 11 engines. And these diesel engines are capable of running at very short span of time. And there is an opportunity of multiple steam turbine plus running engines. So this advantage has gone in favor of Nishad Power, and probably it will also help in the future running possibilities. Next one. Okay, now we will take question and answer, and I will request the participant to one by one place your question, and each participant should ask the one question. Thank you. क्या question है? अस्सलामुअलैकुम, आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि एलपीएस का अमाउंट लेट पेमेंट का रिसीवेबल्स में कितना है, और वो जो एक्सेस अमाउंट का प्रॉफिट आपने दुनिया पावर से रिलेटेड बताया था वो निशात पावर के केस में कितना है? एग्जिट कर दो जी, एक सेकंड नोट करके बताता हूँ। ओके श्योर। 14.4 में ऐसी ब्रेकअप उसका जी 30 जून 2024 को डिले पेमेंट मार्कर का जो क्वांटम है, इट इज 1.88 बिलियन आउट ऑफ 14.6 बिलियन। और एक्सेस प्रॉफिट का अमाउंट जो मोहम्मद अली की रिपोर्ट के हिसाब से वो निशात पावर के केस में कितना है? रिपोर्ट में मेरे ख्याल में इस तो मुझे याद नहीं, रिपोर्ट मेरे सामने है नहीं, गालिबन 9 बिलियन या 8 बिलियन के अराउंड था एग्जैक्टली। आई एम नॉट श्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। जी वर्षा जी सुबह फरूक इफ़्ज़ाल साहब ने काफ़ी अच्छी एक हेड्स अप दे दिया था। जस्ट एक ही क्वेश्चन है कि आउट ऑफ दिस 14.6 बिलियन सीपीपी ईपीपी और लेट पेमेंट आपने बता दिया है, ये काइंडली बता दें मुझे जो रिसीवेबल सीपीपी है और ईपीपी था आउट ऑफ दिस 14.6 बिलियन। जी एनर्जी का
पोर्शन है 9.5 बिलियन, कैपेसिटी का पोर्शन है 3.1 बिलियन और डीपी का मैंने बताया 1.88 बिलियन है और अदर पास थ्रू आइटम्स जो हैं वो 100 मिलियन के करीब हैं। तो टोटल जो है 14.6 बिलियन रिसीवेबल है एज ऑफ 30 जून 2024। थैंक यू सो मच समीर सर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर बेसिकली एक तो मुझे समझना ये है कि अभी जो गवर्नमेंट ने बात करी है 2002 पॉलिसी 2002 की जो पॉलिसी के ऊपर पावर प्लांट्स थे, पोटेंशियली उनका अंदर रीनेगोशिएशन हो रहा है, जो भी व्हाटएवर दैट इज, तो एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी व्हाई डोंट यू स्टॉप सेलिंग पावर टू द गवर्नमेंट? बिकॉज अगर कल सुबह वो आपके तो और रिसीवेबल में पैसे फंस रहे हैं ना, और कल सुबह गवर्नमेंट बोलती है कि इसमें भी आपको डिस्काउंट देना है, तो आप मैनेजमेंट क्यों वो कर रही है? एट द एंड ऑफ द डे यू शुड गेट अ डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट or through your board of directors to stop selling power to the government under the condition that the government wants to renegotiate the tariffs, right? Why isn't the management looking at that? और secondly मुझे ये पूछना था कि आपके रिसीवेबल तो मैं देख रहा था थोड़ी सी एलिवेटेड है पोजीशन रिसीवेबल्स की। आगे आपका व्यू क्या है कि कब तक ये चीजें जो हैं वो सेटअप होंगी, ये इम्प्रूव हो जाएंगी या क्लैरिटी इनकी आ जाएगी? और लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो मोहम्मद अली साहब की जो रिपोर्ट है, दैट इज नॉट एट द एंड ऑफ द डे व्हाटएवर द रिपोर्ट सेज, इट इज नॉट समथिंग टू से कि दिस इज समथिंग सेट इन स्टोन, बिकॉज वो रिपोर्ट बोलती है कि 50 अरब रुपए आपने ओवर बिल किया है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सो दैट डजंट मीन दैट दैट इज द केस, राइट? So why don't you as a group like the IPP Association try to challenge the findings of the report in a court? Thank you. खुरम साहब would you reply to your question? जी सलमान साहब, आपका क्वेश्चन जो है उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि हम क्यों नहीं बिजली को यहाँ पे स्टॉप करते जनरेट करना। तो उसका जवाब ये है कि एट दिस मोमेंट हम अपना पीपीए हमारा इंटैक्ट है, पीपीए टर्मिनेट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम किसी क्लॉज के अंदर उसको ये कह सकें कि आज से हम बिजली आपको नहीं दे रहे क्योंकि फ्यूचर की कोई डिस्कशन हो रही है। और नॉर्मली उन्होंने अभी तक कोई पीपीए टर्मिनेट की बात भी नहीं की है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है। जहां तक दूसरे क्वेश्चन का आपका ताल्लुक है कि जो एक रिपोर्ट बनी है और उसमें वो उन्होंने एक 50 बिलियन का नंबर निकाला है समहाउ अप्रॉक्सीमेटली, और वो हमें कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। तो एक्चुअली अंडर द पीपीए देयर इज ओनली जो उसकी रेमेडी है वो पीपीए के अंदर रेजोल्यूशन की है, किसी भी चीज की जो कि चैलेंज होती है अंडर पीपीए। तो इसमें डिस्प्यूट करने वाली जो पार्टीज हैं उसमें दो है। एक पार्टी ये है कि पावर परचेजर डिस्प्यूट करे, दूसरी पार्टी है कि अगर वो जीओपी इटसेल्फ डिस्प्यूट करती है। तो अगर कोई भी पार्टी उसको डिस्प्यूट करना चाहती है तो वो पीपीए के अंदर डिस्प्यूट करेगी और वो पीपीए के अंदर जाएगा, ना कि किसी कोर्ट के अंदर जाएगा, लोकल कोर्ट में जाएगा। तो अब समहाउ ये चूंकि आर्बिट्रेशन रिलेटेड मैटर है, उसको हम लोकल कोर्ट्स में लेके नहीं जा सकते। तो ये एक पॉलिसी शिफ्ट होएगा और पॉलिसी शिफ्ट पे कोई भी सेक्टर का जो पार्टिसिपेंट है वो उस पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सॉरी सर, मेरे एक और सवाल था जो आपने आंसर नहीं किया। जी प्लीज बताइएगा, मैं शायद स्किप कर दिया मैंने तीसरा सवाल। सर मैंने सवाल ये पूछा था कि जो रीनेगोशिएशन की जब भी बात हो रही है, व्हेन डू यू एक्सपेक्ट द होल प्रोसेस टू एक्चुअली फिनिश? प्रोसेस का फिनिश होगा ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट साइड पे, पावर परचेजर साइड पे जो है वो कितना एंगेज रहते हैं, क्या चीज़ें टेबल पे आती हैं, कहाँ तक निगोशिएशन चलती है। तो एक बॉल पार्क आइडिया है, प्रॉब्ली 2 मंथ्स लग जाए या 3 मंथ्स लग जाए या ज़्यादा भी लग सकता है, वी डोंट नो एग्जैक्टली। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, जैसे हमने एनसीपीएल में डिस्कस किया तो वही अनसर्टेनिटी एनपीएल के लिए भी है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि एनपीएल के अभी पिछले 1-2 साल में डिविडेंड ज़्यादा बेहतर रहे हैं, तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से क्या हम डिविडेंड कंटिन्यू आगे रखेंगे या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको रोक लिया जाए कुछ अर्से के लिए? थैंक यू। नहीं कामरान, मैं आई थिंक यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स। द फर्स्ट फैक्टर इज इकोनॉमी। जितना इकोनॉमी ग्रो करेगी तो कोई भी सेक्टर ग्रो करता है, ये एक थंब रूल है। इसमें हमें अपने सेक्टर को अलग नहीं देखना चाहिए। यू आर अब अगर इकोनॉमी की डिमांड नहीं करती तो कम होगी और बिजनेस जो है कम होगा। गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है और ये प्लांट्स अभी तक हमें जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए। दे आर ऑन द लोड सेंटर और वी आर होपफुल कि इकोनॉमी ग्रो करे पाकिस्तान की और डिमांड बढ़े और ये इस नियर टू लाहौर इसकी जनरेशन और इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से प्लांट लाजमी चले। जी, मतलब यानी कि हम उम्मीद रखें कि डिविडेंड भी थोड़े थोड़े मिलते रहेंगे। जी, थंब रूल वही है जो आप जी में लगाते हैं या किसी और सेक्टर में लगाते हैं। जी जी, तो ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। जी मेरे ख्याल में शायद और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो चौथा चैट के कमेंट्स हैं वो जवाब दे देते हैं। देखते हैं कोई है सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोले। अच्छा, एनपीएल की अगर हम अभी बुक्स को देखते हैं तो यहाँ पे तकरीबन अराउंड 8.2 बिलियन जो है इनका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में है और इसी तरह कोई 2.7 के अराउंड जो है वो कैश यानी बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ये अराउंड जो है वो 10-11 बिलियन जो है वो बन जाता है। तो कंपनी का फ्यूचर में क्या प्लान्स है इस कैश को लेके? आया ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर ही जो है रहेगा या इसको डिविडेंड के तौर पे भी जो है वो दिया जा सकता है? नहीं, ये जो 8 बिलियन ही है जो इस वक्त शॉर्ट टर्म सरप्लस हमारे पास कैश अवेलेबल है। जो दूसरा 2 बिलियन आपको नजर आ रहा है दैट इज अगेंस्ट द वर्किंग कैपिटल लाइंस, उसको नेट करना पड़ेगा वहां से टू अराइव एट द एक्चुअल सरप्लस कैश पोजीशन। तो 8 बिलियन जो सरप्लस कैश है उसका फ्यूचर में, ये रिसेंटली निशात पावर ने मीटिंग में डिविडेंड भी दिया है, तो आगे भी एक्सपेक्टेड है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट मिलके शेयर होल्डर्स के लिए बेहतरी फैसला करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आगे इसका डिविडेंड में जाना है या इसको क्या करना है ये कंपनी ही डिसीजन होगा जो भी बेहतर होगा। सर्कुलेट की सिचुएशन आपके सामने है, टैरिफ रीनेगोशिएट हो रहा है, तो इसको बड़ा डेलिकेटली देखना पड़ेगा इस सरप्लस कैश को। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा एक सवाल है मैनेजमेंट से कि ये आपका स्टैंड क्या है, ये जो मोहम्मद अली की जो कमेटी काम कर रही है पीपीए रीनेगोशिएट करने के लिए, इस पे मैनेजमेंट का क्या स्टैंड है? क्या अगर ये वैसे ही जैसे कि बातें हो रही है कि टेक एंड पे हो जाता है, तो क्या इस कंपनी का फ्यूचर है और ये कंपनी क्या एक्साइटेड है कि ये जो नई मार्केट कम्पिटिटिव मार्केट खुलेगी उसमें ये वेल पोजीशंड है? शुक्रिया। अच्छा, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर कि ये अखबार में पहले और शुरू में जब ये चीज़ चली थी तब भी ये बड़ा शोर मचा था कि टेक एंड पे होने जा रहा है। तो एक चीज़ एज ऑफ टुडे आई कैन इन्फॉर्म ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर कि टेक एंड पे वाला सिनेरियो यहाँ पे नहीं होने जा रहा, बिकॉज इन दैट केस टेक एंड पे का मतलब है कि जितनी बिजली प्रोड्यूस होगी उतनी पेमेंट आएगी कंपनी को, और जिस महीने बिजली प्रोड्यूस नहीं होगी तो उस महीने के फिक्स एक्सपेंडिचर कहाँ से पूरे होंगे। तो ये ऑप्शन तो वायबल ही नहीं था, और ये मोहम्मदी रिपोर्ट और कमेटी और ये सारी जो लोग हैं टास्क फोर्स वगैरह जिसमें तकरीबन सारे पाकिस्तान के जो मेन इंस्टीट्यूशंस और डिपार्टमेंट्स और इदारे हैं सारे ही उसमें इन्वॉल्व हैं। सीपीपी हो गया, पीपीआईबी हो गया, नेपरा हो गया, एससीपी हो गया। तो दे हैव रियलाइज नाउ कि टेक एंड पे वाला टैरिफ जो है पॉसिबल नहीं है अप्लाई करना टू दीज IPPs। नाउ दे आर negotiating the tariff
and we are trying to reach at a level which should be a win-win situation for all the sides. और इसमें कहाँ तक हम कामयाब होते हैं, कहाँ पर जाके ये बात निपटी है, इट विल टेक सम टाइम प्रॉब्ली, जैसे मैंने पहले बताया था 2 मंथ्स भी हो सकते हैं, 3 मंथ्स भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो टैरिफ जो होगा वो कंपैरेटिवली लोअर होगा एज ऑफ टुडे, और वो टेक एंड पे नहीं होगा। थैंक यू। तो सर आप क्या ये कह रहे हैं कि वो एक हाइब्रिड होगा जिसमें कुछ एलिमेंट जैसे O&M एलिमेंट है या कुछ फिक्स्ड एलिमेंट है जो प्लांट को वैसे ही एक्सपेंस करना पड़ता है, और जो बिजली बनाने का जो है सेगमेंट वो दोनों अलग अलग तरीके से ट्रीट होंगे, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसा मेरे ख्याल में अखबार में रिपोर्ट भी हुआ था। हाँ, हाइब्रिड भी हो सकता है, बाहर में भी आया था इसके ऊपर, लेकिन इट इज नॉट फाइनलाइज्ड यet। जी सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि इन केस अगर वर्स्ट केस सिनेरियो जब ये कि कंपनी के साथ जो है कोई सूटेबल रिनेगोशिएशन नहीं होते और गवर्नमेंट टर्मिनेट कर देती है कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मुझे भी पता है कि चांस कम है क्योंकि आप बिल्कुल डिमांड सेंटर के करीब बैठे हुए हैं, तो ये प्लांट क्या बिक सकता है? इसकी कोई वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में? क्या आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि वी आर गोइंग टू सेल द प्लांट, सेल द लैंड? क्या ये भी आप लोगों ने एज अ वर्स्ट केस सिनेरियो सोचा हुआ है? शुक्रिया। नहीं, ये अभी तक हमने टर्मिनेशन वाले ऑप्शन पे गौर नहीं किया, ना हमें टर्मिनेशन का कहा गया है, और अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ रही जहाँ पे टर्मिनेशन हुआ और फिर हम प्लांट को बेचने या कंपेटिटिव मार्केट में जाने और ये CTBCM मॉडल पर जाने की बात करें, वो स्टेज अभी आई नहीं है, तो दैट्स वाई इट्स डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन दैट। तो जब भी ऐसा होगा, जब स्टेज पे जाएंगे, टर्मिनेशन हुआ या हमारा प्लांट बायलैटरल मोड में आया सेल परचेज करने के, फिर इस चीज़ पे देखा जाएगा। एक सवाल है, एक छोटा सा सवाल है। अभी आपसे एक सुलेमान ने एक क्वेश्चन किया था कि बेसिकली आप लोग क्या आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं या कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं, तो आपने कहा दिस इज अ पॉलिसी शिफ्ट जो कि आईपीपी शायद ना करें, बट अगेन एक दो न्यूज़ को मैं रेफर करूंगा, जैसे एटलस पावर हैज एग्रीड टू end its arbitration with the government and paid savings in fuel and operation and maintenance amounting to 4.7 billion. Sabha Power also ended its pending arbitration. तो ये आर्बिट्रेशंस में जो हिस्ट्री में आईपीपी गई हैं, और ये आई गेस ये जो एटलस पावर से रिलेटेड खबर है, ये वही खबर है जो हम आपके केस में भी डिस्कस कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट की है 50 बिलियन की। क्या एटलस की भी उसी रिपोर्ट में यही अमाउंट था एस्टिमेटेड? इस पे आपका क्या कमेंट्स हैं? अच्छा, एटलस के ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते। वी कैन टेल यू दैट कि ये जो रिपोर्ट में प्रॉफिट में सेविंग कैलकुलेट की हुई है, वी फील दैट इज नॉट एक्सेस प्रॉफिट। वी एज पर आवर इंटरप्रिटेशन दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट या रॉन्ग लेबलिंग डन बाय द मोहम्मद अली रिपोर्ट ऑन द सेविंग्स ऑफ द IPPs। हमें ओवर द ईयर प्रॉफिट हुआ, और हमें फ्यूल एफिशिएंसी की मद में प्रॉफिट हुआ, और हमें O&M की मद में सेविंग्स हुई, लेकिन वो जो सेविंग हुई है O&M की मद में, इट डज नॉट मीन कि वो एक्सेस प्रॉफिट है। वो रिजर्व जो है, वो जो सेविंग है O&M की, दैट इज देयर फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजिंग दैट फॉर द फ्यूचर मेंटेनेंस, ऑपरेशन मेंटेनेंस के पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। तो पहले सालों में क्योंकि ये लेवलाइज टैरिफ होता है, आपको अमाउंट आ गई, अब फ्यूचर ईयर में मेंटेनेंस आहिस्ता आहिस्ता महंगी होती जा रही है। तो ये नोशन या ये लेबलिंग जो है ये गलत है, उन्होंने जो भी इसको नाम दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो फिगर है वो मैंने पहले बता दिया कि पहले भी क्वेश्चन आया था कि फिगर कितना है, वो तकरीबन 9 बिलियन है, मेरे ख्याल में 8 बिलियन है, आई एम नॉट श्योर। तो उन्होंने आर्बिट्रेशन के लिए इसको किया है या वैसे के किया है, हमारी आर्बिट्रेशन जो है वो अभी उसका कोई डिसाइड नहीं हुआ है, हम अभी प्रोसेस में हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन का फैसला एंड ऑफ नेगोशिएशन क्या होता है, ये उससे लिंक है कि टैरिफ क्या होगा और फिर आर्बिट्रेशन का डिसीजन क्या होगा। एटलस का केस फर्क है, उनका टर्मिनेशन हुआ था, और टर्मिनेशन के बाद उन्होंने अपना जो भी आर्बिट्रेशन का जो भी अमाउंट था या जो भी रिपोर्ट में थी, उनका आपस में एक निगोशिएशन हो गया।
So our case is different than Atlas. Thank you. Okay, all right, thank you. Thank you I very think much. मेरे ख्याल में ट्रांसफर और कोई सवाल नहीं है, तो we can close the corporate briefing now. Thank you for participation. I think there is no any other further question. So जी. therefore we are concluding the CBS. So thank you for all the joining and attending the CBS of Nishad Power Limited. Thank you, sir. Thank Very you. much. We are leaving.